नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ओल्ड मॉन्क्स। हम कंटिन्यू करेंगे रिलीजियस एक्सपीरियंस पार्ट 5। थोड़े थोड़े कंपोनेंट बच गए हैं। हियर वी विल डिस्कस कंप्लीटली रिगार्डिंग द वेरियस आर्गुमेंट्स टू जस्टिफाई रिलीजियस एक्सपीरियंसेस। ओके, तो रिलीजियस एक्सपीरियंसेस के बारे में एग्जैक्टली क्या सवाल खड़े होते हैं इन द वर्ल्ड ऑफ फिलोसॉफी। एज वी ऑल नो, फिलोसॉफी में हम किसी चीज़ को बिलीव करके नहीं काम करते। ये बात हमने ध्यान में रखनी है, ठीक है। फिलोसॉफी एज अ मैटर ऑफ सब्जेक्ट, वी मस्ट बी इंटरेस्टेड इन द लॉजिकल एनालिसिस ऑफ एनी टॉपिक, ओके, whatsoever. If they are talking about the belief and faith also, which is quite not a part of the reasoning, but still we must rely on as much as possible. जैसे कांट ने बात बताई है, शंकराचार्य ने कोशिश की है कि शब्दों में जिस चीज़ को बयां भी नहीं कर सकते, बट वी मस्ट एटलीस्ट ट्राई टू पुट इट इन दैट पर्टिकुलर वर्ड्स, कि ठीक है, दिस इज नॉट नेति नेति, जैसे शंकराचार्य ने कोशिश की है। जैसे कांट ने कहा है कि यू कैनॉट गो टू दैट लेवल वेयर माइंड कैन नॉट रीच, ओके। So to reach at that level, one must follow something different, that is meditative aspect. इसीलिए रिलीजियस एक्सपीरियंस कितना वैलिड है, इज इट रियली वर्दी और टू ट्रस्ट और नॉट, ये सबसे बड़े सवाल यहाँ पे रेज होते हैं। सो रिलीजियस एक्सपीरियंस इज प्रिसाइजली अ प्राइवेट मैटर, वी ऑल नो. The question raised from the philosophical perspective about religious experiences are, see, this has been written here. The questions are raised from the philosophical perspective, okay. When we talk anything in terms of philosophy, we should not blindly rely on anything, okay. Our object is only to treat it as a something which our mind can understand, okay. So again, philosophy this way also has some limitations if we just rely on the mind and does not take into the ideal aspect like the Plato has done, okay. So what are the questions from the philosophical perspective that has been raised? Is a person justified? Can we believe? Okay. Did he or she get the knowledge of an objective reality? Objective means which can be verified, okay. What is the object of such experience in real sense? Even if it is a private matter, doesn't deviate us from our explorations. Is it not the something which we can verify, okay. How to know if someone is mistaken about such experiences? How to believe that really that individual has went through such experiences? So this has been some questions that can be raised, which is quite a simple to raise the questions about these things which are doesn't fit into the brackets of our mind, ऐसा कहते हैं, क्योंकि इवन इन द हिंदू फिलोसॉफीज वी कैन सी दैट इट इज़ कॉल्ड एज चतुष्कोटि विनिर्मुक्त समथिंग. और पुरुषा के बारे में जब हम बात करते हैं सांख्या में, पुरुषा इज व्हाट, इट इज़ अ चतुष्कोटि विनिर्मुक्त विच इज़ बियॉन्ड दिस फोर क्वार्टर ऑफ द माइंड, ओके. Let's discuss from various perspective here. The analogical explanations of the religious experiences, what they talk. This argument is based on the sense perception, like noetic यानी जो इस particularly mind के content पे believe करता है. So they deal with the content of mind, including beliefs, desire, etc. Okay, if you have a belief, how you are going to explain it in the words? How you can show the object of belief? Okay, so they are things which simply based on the level of your mind. Your mind says this detachment is something called as belief. Okay, so it has a perceptual object which we can perceive. Okay, the individual only can perceive, no other. If other want to perceive, then they have to go through the same process that has been propounded by the person who is actually percepting the object, okay. So both include something which can be checked or verified in some way, okay. So they believe themselves ki according to analogical explanation, they say ki individual have a belief on that particularly, okay. So it is something again goes beyond the level of mind. Scientific explanation of religious experiences. This is a psychological understanding of religious experiences given by the Sigmund Freud. So according to them, feeling of helplessness or a fear in childhood foster a desire for a fatherly or loving protection. उनका ऐसा मानना है, it is a fear is a actually cause of or the origin of that establishment of the belief. कई बार ये बातें देखी जाती है, एक्सपीरियंस भी होती है कई लोगों को, कि इट इज़ ड्यू टू द फियर वी ट्राई टू बिलीव ऑन समवन सो दैट आई कम आउट ऑफ द फियर एंड आई शुड मेक माई सेल्फ रिलैक्स. And this is what the stand taken by the Sigmund Freud. It is a psychological need according to him. Okay. So such desire for a protective figure carries on into adulthood and demands a greater and more powerful being than a human father.
जिस प्रकार से छोटा बच्चा अपने पापा पे विश्वास रख के, अपने फादर पे विश्वास रख के उन चीज़ों पे ये करता है कि हाँ ठीक है, कि अभी मुझे फॉर एग्जांपल ये चीज़ें चाहिए, तो वो अगर नहीं भी मिली या डर भी उसे लगता है किसी चीज़ का, तो ही ऑलवेज कॉल्स द फादर। तो यहाँ पे ये जो एक फादरली फिगर को वो देखता है, तो बड़े होने के बाद क्या होता है, तो बड़े होने के बाद ही लुक्स फॉर समथिंग विच इज़ मोर पावरफुल एंड ग्रेटर देन द फादर जो एक्चुअल थे। तो वो धीरे धीरे उनके जो फियर है, बस उसको सेटिस्फाई करने के लिए लॉजिकल बेस पे दे लुक फॉर, आई मीन इन एट द साइकोलॉजिकल लेवल दे लुक फॉर समथिंग on which they can blindly believe. Okay, so this is a stand taken by the Sigmund Freud. Two further desires that he propounded are the substantiation of universal justice and a continuation of our own existence after death. अभी ये कुछ और चीज़ें इन्होंने propound की है कि कई बार people tells that I have been through the religious experience because they want someone to consider their identity as something, you know, quite in that format कि मुझे भगवान ने चुना है, I am someone shortlisted by the God to do this kind of good things, so that history can remember me, because not every human being can have that kind of experiences. So there are very rare people who goes through this. Okay, so for that sake they try to establish that yes, I have been through the religious experiences. Okay, and substantiation of universal justice का मतलब यहाँ पे होता है कि मैं जो भी मुझे जो रिलीजियस एक्सपीरियंस हुआ है, इट हैज़ ऑल बीन डन जस्ट टू इस्टेब्लिश something good for the people, to give the universal justice to all, and try to, you know, keep our own history to be remembered in the coming future. Okay, so it is a continuation of our own existence after death. यानी this is called as a biological memory. यानी कोई व्यक्ति चला भी जाता है तो भी उसके बारे में बात होती है, जैसे महात्मा गांधी जी ले लो, सुभाष चंद्र बोस ले लो, तो ऐसे जो बातें उनके बारे में होती है, इट इज़ बिकॉज ऑफ द वर्क दे हैव डन. ओके, बट कहीं पे सिगमंड फ्रॉइड का ऐसा भी कहना है कि रिलीजियस एक्सपीरियंसेस कैन बी यूज्ड इन टू पर्टिकुलर टू सेटिस्फाई दिस काइंड ऑफ टू डिजायर्स एज वेल. सो दिस कंबाइंड विशेस आर सेटिस्फाइड थ्रू इल्यूजन ऑफ अ डिवाइन प्रोविडेंस. उनको ऐसा वो ऐसा कहना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रॉइड कि ये मुझे खुद डिवाइन एक गाइड करने वाला है कुछ, तो जिसके थ्रू मैं ये सब कर रहा हूँ. दिस इज नॉट समथिंग आई एम डूइंग. ओके, so this is also being categorized as a psychological understanding of religious experience by the Sigmund Freud. जॉन हिक ने न्यूरोसाइंटिफिक एक्सप्लेनेशन के बारे में बात की है. अकॉर्डिंग टू हिम, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ न्यूरोसाइकोलॉजिकल कॉजेस, न्यूरोफिजियोलॉजिकल कॉजेस, रिलीजियस एक्सपीरियंस मे बी टर्म्ड एज अ डेल्यूजरी. उनका मानना है कि इट्स अ डिल्यूजन. ओके, इट्स नॉट समथिंग रियल, वन जस्ट imagine about it, so it's a illusory, it has a no practical reality as such. Okay, so he provides 5 example to validate his stand. How? अभी एक एक्सपेरिमेंट किया गया था हिस्ट्री में, एक गॉड हेलमेट बनाया गया था, यानी इट्स कॉल्ड एज अ परसिंगर हेलमेट ऑल्सो कहा जाता है उसको. एक्चुअली देर वॉज अ पर्सन हुज सरनेम वॉज कोरेन आई थिंक, एंड ही इन्वेंटेड दिस गॉड हेलमेट. ओके, और वो क्या करते थे, वो हेलमेट को किसी को पहना के बिठाते थे चेयर पे, और एक मैग्नेटिक फील्ड उनके टेम्पोरल लोब के अराउंड डेवलप करते थे, ड्यू टू विच दैट इंडिविजुअल कुड हैव दैट मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस. ओके, so the temporal lobe stimulation by magnetic field using the Persinger helmet have caused mystic experiences in some cases. But अगर आप कहीं पे भी इसे पढ़ते हो इसके बारे में, तो आपको पता चलेगा कि इसके बारे में कोई भी वैलिड ऐसा प्रूफ कि हाँ ये एक्सेप्टेड है, वेल इस्टेब्लिश्ड थेरी है ऐसा, या वेल इस्टेब्लिश्ड एक्सपेरिमेंट है ऐसा, किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया है. काफ़ी जर्नल्स ने इसके ऊपर रैदर क्रिटिसिज्म ही की है या डाउट रेस किया कि व्हाट काइंड ऑफ थिंग इट इज़, हाउ वन कैन हैव दैट काइंड ऑफ एक्सपीरियंसेस. और वो मिस्टिक एक्सपीरियंस भी बहुत ही रेयर केसेस में किसी को एक्सपीरियंस हुए हैं. सो दैट्स वाई इट इज़ नॉट अ कंसिडर्ड एज अ समथिंग ट्रस्ट वर्दी. बट जॉन हिक इज टेकिंग सपोर्ट ऑफ दिस आर्ग्यूमेंट कि गॉड हेलमेट यूज़ करके भी आप वैसे एक्सपीरियंसेस कर सकते हो, बट दिस इज नॉट समथिंग विच इज़ प्रूवन मेथडोलॉजी. ओके, साइकोट्रॉपिक ड्रग्स कैन कॉज वेरियस फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस एक्सपीरियंसेस. नाउ पर्टिकुलरली ड्रग एडिक्ट लोग, या उस विषय में अगर हम नार्कोटिक्स की बात करते हैं, तो वी ऑल नो दैट मेनी पीपल गोज थ्रू दैट, यू नो, एक ट्रांस में चले जाते हैं. दे डोंट हैव दैट काइंड ऑफ यू नो अवेयरनेस ऑफ रियलिटी, व्हाट दे आर डूइंग एंड व्हाट दे आर सेइंग. ओके, सो वो सब भूल जाते हैं. इन शॉर्ट, अल्कोहलिज्म या ड्रग्स में एक चीज़ देखी जाती है, दैट योर माइंड बिकम साइलेंट्स एंड
यू नो द आपके जो न्यूरॉन्स है दे बिकम सो कंट्रोल्ड एंड वो एक तरीके से ट्रांस में एक लीप चले जाता है. सो दैट्स वाई द पीपल हु आर ड्रग एडिक्ट कैन बी सीन एज behaving very randomly. Okay, so there is no structure. Okay, so this can also cause a religious experience. ऐसा इनका मानना है. हाउ वैलिड इट इज आई डोंट नो, बट जब किताबों में दिया है तो हमें पढ़ना पड़ेगा. प्योर कॉन्शियसनेस और कॉन्शियसनेस ऑफ वॉइड एम्प्टीनेस शून्यता इज कॉज्ड बाय कॉन्शियसनेस बाय कटिंग ऑफ ऑल द सेंसरी इनपुट्स. ये एक वैलिड माना जा सकता है बिकॉज मेडिटेशन जब उसकी बात होती है तो वो क्या है. तो मेडिटेशन इज समथिंग विच एक्चुअली आवर अटेंशन, जो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है लाइफ का, अटेंशन जो बाहर की चीज़ों पे ना होते हुए कहीं ना कहीं हमारे सोर्स के तरफ हम उसे कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश करते हैं. ओके, जनरली अटेंशन की जब बात आती है तो कभी भी किसी भी व्यक्ति का अटेंशन डिस्ट्रैक्ट होता है 83% बाय देयर आइज. यानी अगर कोई व्यक्ति कुछ काम कर रहा है और उसे कुछ ऐसी चीज़ दिखती है जो उसके काम से विपरीत है या कुछ अनयूजुअल है, तो इमीडिएटली उसका अटेंशन डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा. तो आईज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर 83% ऑफ डिस्ट्रैक्शन ऑफ योर अटेंशन. रेस्ट 14% इज बाय द ईयर्स. कभी भी आप जोर से शोर सुनते हो या कोई ऐसा आवाज़ सुनते हो तो आपको ऐसा लगता है अरे क्या है यार, यू गो देयर, यू ट्राई टू सी एग्जैक्टली व्हाट हैज हैपेंड. तो आईज एंड ईयर आर मेकिंग द और कैन बी कंसिडर्ड एज अ बिगेस्ट डिस्ट्रैक्शन ऑफ द अटेंशन. सो आंखें और कान, इसीलिए जो भी दिव्यांग लोग होते हैं जिनकी चाहे बर्थ से ले लो या बाय थ्रू एनी अदर वे, जिनके आंखें चली जाती है बट या जिनके हियरिंगनेस पे कोई इश्यूज आते हैं, तो वो लोगों का माइंड बड़ा शार्प होता है, उनका अटेंशन बहुत शार्प होता है. तो ये इसलिए होता है बिकॉज आउटवर्डली जो उनका अटेंशन के डिस्ट्रैक्शंस थे वो कट हो गए. ओके, तो दैट्स वाई दे आर कंसिडर्ड एज अ दिव्यांग. उनको वैसा बोलना भी कुछ बात यानी कंटेक्स्ट में सही भी मान सकते हैं हम लोग. तो उसी तरीके से किसी को अगर मेडिटेशन में जाना है तो उसे आंख बंद करना बहुत ज़रूरी है. इसीलिए वो सिखाते हैं पहले कि क्लोज योर आइज. देन कुछ लोग वो ईयरफोन हेडफोन्स या कॉटन के बग्स वो यूज़ करते हैं सो दैट कोई ऐसा आवाज़ ना आए जिसकी वजह से मेरा अटेंशन डिस्टर्ब हो. बट व्हाट एग्जैक्टली देन आफ्टर, तो यहाँ पे जो यू आर कटिंग ऑफ फ्रॉम द सेंसरी इनपुट्स जो बोला है ये वही चीज़ है. आंखों से आने वाले इनपुट को आप कट कर रहे हो, आंखें बंद कर दी. कान से आने वाले यानी ईयर से आने वाले इनपुट को आपने बंद कर दिया, कट कर दिया. और उसके बाद में नाउ योर अटेंशन cannot go outside of this body. Your attention has to go inside, look after to something. क्योंकि माइंड की वो हैबिट होती है कि उसको कुछ ना कुछ खाद्य, इट नीड सम फूड टू ईट ऑल द टाइम. इसलिए दिमाग शांत नहीं बैठ सकता. इसीलिए तो वो अंदर की चीज़ों पे फोकस करना शुरू करता है. सो दोज पीपल हु जस्ट सिट फॉर द मेडिटेशन विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग and simply attending whatever the calls they are getting from the inside body, they can go into the level of pure consciousness. So एक्चुअली जब हम आंखें बंद करते हैं उसको भी मेडिटेशन नहीं कहते, इट्स जस्ट अ कॉन्सेंट्रेशन. मेडिटेशन तब कहा जाता है जब हमारा अटेंशन हमारे सोर्स पे हम फोकस करते हैं तब. सो उसके लिए काफ़ी प्रैक्टिस लगती है या काफ़ी सिटिंग्स लगते हैं टू हैपन दैट. ओके, द सेंस ऑफ यूनिटी विथ ऑल रियलिटी इज कॉज्ड बाय क्लोजिंग डाउन द अवेयरनेस ऑफ द बॉडीली बाउंड्रीज ऑफ द इंडिविजुअल. यही चीज़ है कि जब हम बॉडीली एस्पेक्ट पे भरोसा यानी कट कर देते हैं हम उसको यानी उसके अवेयरनेस से भी, तो धीरे धीरे भी गो टू दैट लेवल ऑफ सेंस ऑफ यूनिटी. ओके, दिस इज व्हाट जॉन हिक हैज propounded. द सेंस ऑफ प्रेजेंस ऑफ गॉड इज कॉज्ड बाय स्प्लिटिंग of the self system into two, one half seeing the other half as a distinct identity. उनका कहना है कि गॉड या उस प्रकार का जो एक रियलाइजेशन प्रेजेंस जो हमें फील होता है, वो सेंस जो जनरेट होता है, इट इज़ नथिंग बट कटिंग आवर सेल्फ इंटू टू हाफ. दैट मी इज डिफरेंट फ्रॉम माई सोल. माई सोल इज गॉड एंड आई एम वॉट आई एम. बट ये दोनों भी एक है, ऐसा सिर्फ ईस्टर्न कल्चर के आपके स्क्रिप्चर्स में पढ़ने को मिलेगा. But here they are trying to analogically put it in words by John Hick. So इसी प्रकार से ये थे अलग अलग आर्ग्यूमेंट्स टू प्रेजेंट दैट काइंड ऑफ रिलीजियस एक्सपीरियंसेस. किसी ने साइंस का यूज़ किया, किसी ने आर्ग्यूमेंट्स का यूज़ किया एनालॉजी का, किसी ने न्यूरो साइंटिफिक इसका यूज़ किया. तो रिलीजियस एक्सपीरियंसेस हियर वी कैन सी इज समथिंग विच क्वाइट अ प्राइवेट मैटर एंड टू स्पेल आउट इन वर्ड्स इट इज़ very difficult. Okay,
Still, our philosophy as a subject has tried a lot to come out of with the facts that can be seen, that can be verified, that can be understood on the basis of logic. But yes, it is still a matter of debate, and research is still going on in this particular field on the scientific aspect. Okay, in Eastern religion, if we see, there are every way have been established to realize the religious experiences. Okay, as propounded by the Sadguru also. So थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, दिस इज ऑल अबाउट रिलीजियस एक्सपीरियंसेस. नेक्स्ट वीडियो में हम चैलेंजेस देखेंगे, जो कि एक बहुत ही छोटा पार्ट बचा हुआ है. आफ्टर दैट वी विल बिगिन विद द मिस्टिसिज्म. थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट.